Hello dear student, welcome all once again in my channel English Tutorial with Rachna. So dear student, in continuation of the English grammar study, today I am going to teach you a very important chapter of your English grammar book, that is models. So before we can start the chapter, let me remind you that when I was teaching you verbs, so I referred about models, that what are models. So in that video I explained you that models are a kind of verb which comes in the category of auxiliary verbs. Okay, so I told you that there are two types of auxiliaries, which is also called helping verb, and which is classified into two types. The first one is helping verb and the second one is models. So let me tell you that what are models and how they are different from helping verb in this very video. Then we shall again study in this video in detail that what are the different uses of different models. Okay, so let's start the video. So first of all, let me explain that what is a model. So dear student, let me tell you that models are verbs which are used to express the mood or attitude of the speaker. What do they do? They expresses the mood or the attitude of the speaker. क्या फंक्शन होता है मॉडल्स का? ये स्पीकर जो है उसके मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं. एंड व्हाट डज हेल्पिंग वर्ब डू? सो हेल्पिंग वर्ब helps you to identify the tenses. They are used in different tenses. Okay, I told you. So let me tell you that there are a number of models like can, could, will, would, shall, should, and many more. So before I will explain you the different use of these models, I will like to tell you that how the models are different from helping verb. Okay, so here we have the number of models which comes can, could, shall, should, will, would, and may, might, must, ought to, dare. Okay, so these are the number of models. Okay, and now further we shall discuss that what are the features, what are the characteristics of model. तो मॉडल्स की क्या लक्षण होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं. So first of all, you know very well that models are a type of word. What are they? They are a type of verbs. Okay, and they can be used only in the helping form. Okay, how can you use model? You can use it as a helping form, not as a main verb. Okay, now let me explain the next function of model. They cannot be used as the main verb in a sentence. ये sentence में main verb की तरह नहीं यूज़ होते हैं. मैंने बताया कि helping form में यूज़ होते हैं. They do not have ing form, ed form और yes या yes form. Okay, आपको मालूम है कि जो helping verb होते हैं वो अपने साथ में main verb की yes या yes form लेते हैं, ed form लेते हैं, ing form लेते हैं. लेकिन जो models के साथ में आने वाले जो main verb होते हैं वो उनके साथ आप हमेशा जो है मेन वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वही यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. अब ये बहुत ज़रूरी बात, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया मैंने आपको, जिसमें मैंने बताया कि जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर करना होता है ना. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको यूज़ करना होता है वर्ब एंड सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन जो होता है. पर मॉडल्स के साथ आप फ्री हो सकते हो. आप में इसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है कि आपका सब्जेक्ट क्या है तो इसके साथ ये मॉडल यूज़ होगा, इसके साथ ये मॉडल नहीं यूज़ होगा. जो मॉडल्स होते हैं ये सभी ये नहीं देखते हैं कि सब्जेक्ट का क्या कौन सा पर्सन है या फिर कौन सा नंबर है. ओके, दे हेल्प टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. अब ये क्या बताते हैं, ये किस तरह यूज़ होते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मॉडल्स जो है, जो स्पीकर होता है उसके मूड, उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं. तो ये क्या 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 चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं मॉडल्स के हेल्प से सेंटेंसेस में. तो
किसी पर्सन की एबिलिटी, उसकी योग्यता, उसकी किसी कार्य की पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने या नहीं होने की संभावना, ठीक है, परमिशन या फिर ऑब्लिगेशन, बाध्यता, ये सारी चीज़ें, ये सारे मूड को एक्सप्रेस किया जाता है मॉडल्स की हेल्प से। तो क्या जाना आपने मॉडल्स के बारे में कि ये एक प्रकार का वर्ब्स होता है और ये हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, न कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपके बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था ना, डू, डज, हैव, ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, है ना। लेकिन मॉडल जो है सिंगल ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकता है, इसके साथ मेन वर्ब आएगी ही। और कौन सी फॉर्म आती है इसकी? बेस फॉर्म आती है, ओके। मेन वर्ब की बेस फॉर्म इसके साथ आती है मॉडल्स के साथ। और आपको सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लाइक डू के फॉर्म्स हैं, हैव के फॉर्म्स हैं, ओके, और इज़ के फॉर्म, बी के फॉर्म्स हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सेंटेंस में विदाउट मेन वर्ब भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इज़ जो है वर्ब है, इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है। लेकिन आप कोई क्या ऐसे सेंटेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें आप केवल मॉडल यूज़ कर रहे हो, कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है? नहीं। तो ये हमेशा जो मॉडल्स हैं वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ होते हैं, ऑक्सिलरीज की तरह यूज़ होते हैं, इनके साथ में मीन्स ये मेन वर्ब के बगैर नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये केवल असिस्ट करेंगे मेन वर्ब को, ये स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को ही एक्सप्रेस करेंगे, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते हैं सेंटेंस में। गॉट इट। एंड नेक्स्ट मैंने बताया कि इनके साथ हमेशा जो है मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है और ये जो है चेंज नहीं होते हैं कि आपका सब्जेक्ट का जो भी नंबर है या पर्सन है इस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये एक्सप्रेस क्या करते हैं, ये बहुत क्या क्या ऐसी चीज़ें बताते हैं, किस तरीके के मूड को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, जैसे ऑब्लिगेशन, परमिशन, ओके, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सारे मूड्स एंड एटीट्यूड एक्सप्रेस किए जाते हैं मॉडल्स की हेल्प से। तो चलिए अभी समझते हैं हम डिफरेंट जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनके अलग अलग क्या क्या यूजेस हैं, क्या कौन से मूड को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट हमारे जो चैप्टर में है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, किसके ये जो मूड हैं ये किस मॉडल्स के हेल्प से यूज़ किए एक्सप्रेस किए जा सकते हैं? कैन, कुड, बी एबल टू, ओके। चलिए कैन से शुरू करते हैं। कैन का यूज़ आप प्रेजेंट टेंस में करते हो, ओके, और कैन का यूज़ आप प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी को, ओके, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी या फिर किसी व्यक्ति की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। लाइक यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में है ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर वेरी फास्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस की जा रही है? एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, ओके। रीता कैन कम हियर इन द इवनिंग इफ़ सी इज़ फ्री, ओके। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की वो पॉसिबल है कि रीता इवनिंग में आ सकती है, यहाँ पे कैन के थ्रू पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, किया जा रहा है और वो भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अ जिम्नास्ट कैन समरसॉल्ट ईजिली, ओके। तो यहाँ पे जो है कि प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे भी अगेन एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है कैन की हेल्प से। कैन हैज़ ओनली 2 फॉर्म्स, कैन को आप जो है कैन के फ्यूचर कोई फॉर्म नहीं है, कैन का प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म है। जैसे कैन को प्रेजेंट में आप यूज़ कर सकते हो और कुड को आप पास्ट में यूज़ कर सकते हो, ओके। लेकिन इसका कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। आई कैन मेक डिलीशियस फ्रूट सैलड, तो ये आपका प्रेजेंट फॉर्म हो गया और इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आई कुड डांस वेल इन माई चाइल्डहुड, ओके। तो ये इसका पास्ट फॉर्म है, कुड, कैन का कुड जो है पास्ट फॉर्म है, ओके। बट बी एबल कैन बी यूज इन ऑल टेंसेस, लेकिन जो बी एबल टू है वो कैन का सब्स्टिट्यूट होता है एक तरीके से, इसका विकल्प के रूप में। आप जहाँ पे आप कैन यूज़ करते हैं वहाँ पे आप बी एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बी एबल टू कैसे डिफरेंट है कैन से? क्योंकि ये इसके सभी टेंसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बी एबल टू को आप प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे ही इज़ एबल टू स्पीक फ्रेंच, ओके, प्रेजेंट है। द मैकेनिक हैज़ नॉट बीन एबल टू रिपेयर द वॉशिंग मशीन, अगेन ये क्या है? प्रेजेंट ही है आपका, ओके। आई विल नॉट बी एबल टू अकम्पनाई यू टू द मार्केट टुडे, ओके। यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म हो गया इसका बी एबल टू का, ओके, फ्यूचर टेंस में यूज हो गया। कैन, कुड, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को आपने क्या नोट किया इस एक्सरसाइज में आपने, कि कैन और कुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, ओके। और बी एबल टू जो है पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के लिए ये भी यूज़ होता है, लेकिन ये सभी टेंसेस के लिए यूज किया जा सकता है,
Okay, so you have understood. Now there is exercise that you have to do. Okay, and I'm not going to explain that exercise, otherwise the video will take a lot of time. So moving further, we'll understand the next use of models. तो हम कैन और कुड का अब हमारा नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट हमारा परमिशन, मैंने अभी बताया, तो आस्किंग फॉर थिंग्स मतलब परमिशन लेने या देने के लिए हम भी कैन, कुड, मे, विल, ये सारे 4 मॉडल्स का यूज़ हम कर सकते हैं. सो वी हैव 4 दिस मॉडल्स. वी कैन यूज़ दिस मॉडल्स फॉर आस्किंग things. Okay, it means for taking permission. So let's see. Can I buy your pen? Okay. Can I read your book please? Could you make a cup of tea please? Could you bake a cake for me please? Rohan to his colleague. रोहन अपने कलीग से बोलता है, may I drive your car today? Doctor to the nurse. डॉक्टर नर्स से कहते हैं, may I have the patient's blood report? ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि चीज़ों के पूछने के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ किया जा रहा है, कैन, कुड, मे एंड विल का. ओके, अब ये हम अलग अलग देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है. मे इज़ आल्सो पॉसिबल बट बीइंग वेरी फॉर्मल इट इज़ नॉट प्रेफर्ड. ओके, हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मे जो है बहुत ही फॉर्मल सेंस में यूज़ कर सकते हैं. देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल मे के दिए हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो रोहन अपने कलीग से बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऑफिशियल कन्वर्सेशन हो गई. तो ये ऑफिशियल कन्वर्सेशन है 2 लोगों के बीच में, रोहन अपने कलीग से बोल रहा है, तो ये एक फॉर्मल टॉक हो गई है ना. दे आर नॉट रिलेटिव, दे आर नॉट फ्रेंड्स. ओके, सो दे आर हैविंग ऑफिशियल और फॉर्मल कन्वर्सेशन यू कैन से. ओके, तो फॉर्मल कन्वर्सेशन में हम मे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर अपने नर्स से बोल रहे हैं. ओके, तो इस तरीके के, इसलिए जो है कि मे का यूज़ बहुत कम किया जाता है क्योंकि ये फॉर्मल कन्वर्सेशन में केवल यूज होता है. हाउएवर वी कैन यूज़ विल इफ़ वी लाइक, और हम मे की जगह विल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें चाहें तो. विल यू स्विच ऑन द टीवी प्लीज़? ओके, तो ये सारे यूज़ करते हैं हम चीज़ों को पूछने या परमिशन लेने या फिर किसी से कुछ कहने के लिए. जैसे कैन जो है इनफॉर्मल सेंस में यूज होता है. अब फॉर्मल सेंस में आप कैन का यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना. इनफॉर्मल सेंस में आप जो है किसका यूज़ करते हो, कैन का यूज़ कर सकते हो. मे जो है फॉर्मल सेंस में यूज़ कर सकते हो. और कुड कैसे डिफरेंट है मे और विल और कैन से, क्योंकि ये बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आपको किसी चीज़ के आप बहुत ही किसी सामने वाले से बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइटली, तो आप जो है मे का यूज़ करते हो, सॉरी कुड का यूज़ करते हो. और विल तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में कैन और मे के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप विल का भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में आप मे का यूज़ जनरली करते हो और इनफॉर्मल में कैन का करते हो. कैन की जगह आप विल भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ अगेन देयर इज़ एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू. मूविंग फर्दर वी शैल अंडरस्टैंड. यस, आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन, परमिशन देने और लेने के लिए भी हम कैन, मे एंड कुड का यूज़ कर सकते हैं. ओके, इट इज़ समीज़ बर्थडे. चलिए, यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, अब इसको हम रीड करते हैं, इससे समझते हैं हम मे, कैन एंड कुड का यूजेस. समीर का बर्थडे है एंड हिज फ्रेंड्स हैव गैदर्ड फॉर द सेलिब्रेशन. उसके सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए. मदर बोलती हैं, किसकी, समीर की. समीर, नाउ यू कैन कट द केक. अब समीर की मदर अपने बेटे से बात कर रही हैं, तो ये इनफॉर्मल टॉक हो गया. ठीक है, मैंने कहा इनफॉर्मल सेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं. तो समीर की मदर ने क्या कहा कि समीर, नाउ यू कैन कट द केक. ओके, सी इज़ गिविंग परमिशन. क्या, किस लिए वो परमिशन दे रही है समीर को कि अब वो केक कट कर सकता है. समीर कहता है, मम्मा कैन आई ईट लास्ट पीस ऑफ द चॉकलेट केक. अब यहाँ पे समीर क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है, मम्मी से पूछ रहा है. मम्मी परमिशन दे रही थी, अब वो क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि परमिशन लेने और देने दोनों के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हो. कैन का यूज़ कब करते हो, इनफॉर्मल सेंस में, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर से बात करते वक्त. ओके, मदर बोलती हैं, येस यू कैन. अब वो परमिशन दे रही हैं. फिर वो क्या कह रही हैं, यू कैन सर्व केक एंड वेफर्स टू योर फ्रेंड्स. वो फिर परमिशन दे रही हैं कि तुम केक को केवल खुद ही नहीं बल्कि तुम जो है केक सर्व कर सकते हो और वेफर भी साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को. ओके, नेक्स्ट मानिश उसका फ्रेंड है समीर का, वो बोलता है, समीर कैन आई हैव सम मोर केक.
वो भी परमिशन क्या ले रहा है। अब वो उसका फ्रेंड है तो वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ही होगी। समीर कहता है श्योर, यस श्योर यू कैन। मदर कहती है समीर कैन यू लुक आफ्टर योर फ्रेंड्स। रवि आंटी मे आई हैव सम मोर वेफर्स। अब देखो यहाँ पे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो गई, क्योंकि रवि जो है समीर का फ्रेंड है और समीर की मदर उसकी से बड़ी हैं। वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो एक दूसरे को पहले से जानते नहीं हैं, क्योंकि वो उसके फ्रेंड की मदर है, वो उससे बड़ी भी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सम्मान के साथ बात होगा, फॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाएगी ना। तो वो इसलिए परमिशन ले रहा है और फॉर्मल तरीके से परमिशन ले रहा है। वो बोल रहा है आंटी मे आई हैव सम मोर वेफर, ओके। उसकी मदर कहती हैं येस यू मे रवि, कुड यू स्विच ऑन द फैन प्लीज़। अब वो रिक्वेस्ट कर रही हैं रवि से, क्योंकि वो गेस्ट है उनका और वो होस्ट है, इसलिए उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसे पोलाइट रिक्वेस्ट करें। तो वो क्या कहती हैं कि क्या तुम फ़ैन को बंद कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है और पोलाइटली वो उससे किसी चीज़ के लिए बोल रही हैं, ठीक है, पूछ रही हैं, इसलिए यहाँ पे कुड का यूज हुआ है। द स्विच बोर्ड इज़ राइट बिहाइंड, क्योंकि वो रवि के पीछे ही स्विच बोर्ड है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करके बोलती हैं, ओके। समीर कहता है मम्मा कैन आई डिस्ट्रीब्यूट द रिटर्न गिफ्ट्स नाउ। अब वो अपनी मदर से परमिशन ले रहा है, क्योंकि वो उसकी मदर है, तो वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया। मदर कहती है येस यू कैन डू दैट नाउ। रवि कहता है आंटी मे आई लीव नाउ। अब रवि के लिए भी क्या है, उसकी मदर जो है क्या है, बड़ी है, इसलिए वो फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है। वो बोल रहा है आंटी क्या मैं जा सकता हूँ, आई हैव टू गो विद माई पेरेंट्स, ओके। वो कहते हैं कि ओ श्योर यू मे, ओके। तो आपने देखा कि हम किसी चीज़ को पूछने के लिए किसी से या फिर परमिशन देने और लेने के लिए कैन, कुड और मे का यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या है कैन और मे में, कि मे का जो है मे का यूज हम फॉर्मल सेंस में करते हैं, किसी बड़ों से बात करने, ऑफिस में, या फिर है ना ऑफिशियल कन्वर्सेशन हो, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, पहली बार मिल रहे हो, उससे कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाता है, ओके, सम्मान देते हुए। और इनफॉर्मल जैसे आप फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बात करते हो, तो इनफॉर्मल तो कैन चलता है, ठीक है। और कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है, पोलाइटली किसी से कोई चीज़ पूछना है, कहना है, ओके, तो उसके लिए कुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है कुड एंड वॉज एबल टू का। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुड जो है हमेशा पास्ट फॉर्म में यूज होता है। अब वॉज एबल टू उसका क्या है, वो भी सब्स्टिट्यूट है कुड का, एक तरीके से उसका विकल्प है। जहाँ आप कुड यूज़ करते हो वहाँ पे आप वॉज एबल टू भी यूज़ कर सकते हो, ओके। लेट्स सी व्हाट इज देयर यूज़। Could also suggest general ability in the past or permission to do something. कुड का प्रयोग भी हम जनरल एबिलिटी या फिर पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। वॉज एबल टू सजेस्ट एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखो डिफरेंस क्या है कुड और वॉज एबल टू में, कि कुड जो है मतलब जो है आपका पास्ट में, ठीक है, परमिशन देने के लिए या फिर जनरल एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वॉज एबल टू केवल किसी पर्टिकुलर सेंस में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में किसी व्यक्ति की एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल आई कुड ईजिली क्लाइंब ट्रीज। यहाँ पे जनरल तरीके से उसकी एबिलिटी की, जब वो छोटी लड़की थी तो उसकी ये एबिलिटी थी कि वो पेड़ पे चढ़ सकती थी। अब एक बार थोड़ा ही चढ़ सकती थी, वो कई बार चढ़ सकती थी। जब वो छोटी बच्ची थी तो दैट एबिलिटी सी हैड, ओके, उसके पास ये एबिलिटी थी। नाउ आई कुड वॉच द प्ले बिकॉज आई हैड बुकड माई टिकट्स अर्लियर। यहाँ पे भी क्या है, जनरल एबिलिटी है, ठीक है, कि मैं प्ले देख सका क्योंकि मैंने पहले से ही बुक रखा था टिकट्स को। सी वॉज एबल टू गेट इन टू द बस बिकॉज इट वॉज नॉट ओवर क्राउडेड। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, पास्ट की पर्टिकुलर सिचुएशन है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं थी बस, इसलिए मैं बस में चढ़ सकी, ओके। तो यहाँ पे एक किसी विशेष परिस्थिति की बात की जा रही है, हमेशा की बात नहीं की जा रही है, ओके। द बॉय कुड पेंट वेल एंड ही हैड वॉन मेनी प्राइजेस इन द पास्ट, ओके। यहाँ पे भी उसकी जनरल एबिलिटी है, इसलिए कुड का यूज़ किया गया है। तो आप समझ गए कि कुड और वॉज एबल टू का यूज़ आप करते हो पास्ट में एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। डिफरेंस ये है कि जब जनरल सेंस होगा, है ना, हमेशा हमेशा की बात होगी तो कुड यूज़ करेंगे, और जब किसी पर्टिकुलर सेंस की बात होगी तो आप वॉज एबल टू यूज़ करेंगे, ओके।
अभी एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, दैट इज़ देयर इन योर बुक. ओके. नेक्स्ट यूज कुड इज़ यूज टू मेक सजेशन. वॉट शैल वी डू. ओके. कभी कभी सजेशंस देने के लिए भी आप यूज कुड का यूज़ करते हो. लाइक लेट्स सी, a couple in is discussing something important here. Okay, you can see a couple over here. आपको एक कपल दिखाई दे रहा है इमेज में, ये एक दूसरे से कुछ डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट. ओके. अ गेस्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर डिनर एंड मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता. ओके. तो मिस्टर और मिसेस गुप्ता के यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं एंड दे डिस्कस देयर प्लान्स, और ये लोग अपने प्लान्स को डिस्कस कर रहे हैं. क्या प्लान्स हैं इनके, लेट्स सी. तो मिसेस गुप्ता कहती हैं वी कुड टेक आवर गेस्ट आउट फॉर डिनर. वो सजेस्ट करती हैं कि आपको क्या लगता है, हम अपने गेस्ट को बाहर ले जा सकते हैं. आई कुड प्रिपेयर इंडियन फूड एट होम. ओके. वो ये भी कहती हैं, या फिर मैं जो है कि इंडियन फूड घर पे, अगर इंडियन फूड वो करेंगे तो मैं इंडियन फूड तो बना सकती हूँ, या फिर हम बाहर अगर वो कोई कॉन्टिनेंटल डिश करना चाहेंगे तो हम उन्हें बाहर भी ले जा सकते हैं. ओके. तो मिस्टर गुप्ता कहते हैं, वो कहते हैं वी कुड ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड. वो कहते हैं कि अगर बाहर ले जाने से अच्छा है कि हम बाहर से भोजन ही मंगवा सकते हैं. या वी कुड ऑर्डर चाइनीज फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट. हम पास के किसी रेस्टोरेंट से चाइनीज फूड मंगवा सकते हैं. तो ये उनका सजेशन है. ओके. तो आपने देखा कि जनरल सेंस में व्हाट शैल वी डू की जगह आप कुड सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. व्हाट शैल वी डू जो है उसकी जगह आप जो है क्या विकल्प के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कुड, सजेशन के लिए. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे, माइट और कुड का यूज़ करते हैं. अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है कि पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप मे, माइट और कुड का यूज़ कर सकते हो. चलिए, पिक्चर में एक कन्वर्सेशन है, एक विमेन है और एक गर्ल है. क्या कन्वर्सेशन होती है, विमेन बोल रही हैं कि वेयर इज़ किटी. अब ये लड़की गेसेस कुछ दे रही है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रही है. वो कह रही है पहले कि किटी कुड बी अंडर द बेड. ओके. सी माइट बी इन द गार्डन. सी में बी स्लीपिंग इन द बास्केट. अब यहाँ पे 3 बातें किटी के बारे में बता रही है कि या तो वो बेड के नीचे हो सकती है, वो गार्डन में हो सकती है, या फिर वो बास्केट में सोई हुई हो सकती है. अब इन तीनों को, सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें से जो ये 3 बातें कह रही है लड़की, इसमें से कौन सी बात के होने की सबसे कम संभावना है, कौन सी बात के होने की. अब कोई बास्केट में कोई सो थोड़ा ही सकता है, तो कम संभावना को कौन रेफर कर रहा है, मे. लेट्स सी. बोथ मे एंड माइट आर यूज्ड टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी. अब आप देख रहे हो मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी को सजेस्ट कर रहे हैं. अच्छा, सॉरी, किटी इज़ अ कैट सो सी कैन स्लीप इन अ बास्केट. सॉरी, तो वो तो बास्केट में सो ही सकती है. तो ये मे और माइट जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बट ओके, बट माइट सजेस्ट अ वीकर पॉसिबिलिटी. अब मे से कम पॉसिबिलिटी को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, माइट. मे आल्सो बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन सेंटेंसेस. सी कुड बी इन द गार्डन. बोथ बट कुड सजेस्ट स्टिल वीकर पॉसिबिलिटी. तो अब देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा ये जो लड़की बात कर रही है, इसमें सबसे ज़्यादा संभावना ये हो सकती है कि किटी अगर दिखाई नहीं दे रही है, सी इज़ अ कैट, तो वो बास्केट में सोई हुई होगी. तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के होने की संभावना है. तो मे जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. माइट जो है मे के कंपेयर में थोड़ा कम संभावना, जो चीज़ कम हो सकती है, या तो वो गार्डन में हो सकती है. अब अगर वो बेड के नीचे ही हो सकती होगी तो उसकी मदर को दिखाई भी दे सकती है. इसलिए इस चीज़ के होने की सबसे कम संभावना है. इसलिए सबसे कम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस के लिए आप कुड यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. मे सबसे अधिक, माइट उससे कम, और कुड सबसे कम. ओके. पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. अगेन देयर इज एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू. ओके. Dear student, I think that this video, if I'll cover in 2 videos, so that will be appropriate, because if the video will get too long,
yes, the content may be out of your mind. Okay, so it's good to end this video right now here. Okay, and at the end, I hope that if you have any doubt and if you are not able to understand it, you can send your doubt in the groups, you can send it in comment box also. Now again, before ending the video, I would like to make you a request that please subscribe the channel so that you can keep on getting the next videos on my channel. Thank you.